کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. مسئلہ یہ تھا کہ پہلے فرقہ واریت کے ہم بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ چلتے تھے، اپنے فرقے کی یعنی کہ اپنے مولوی کی بات جو ہے نا وہ ہم ایکسیپٹ کرتے تھے. بیس عوام جو ہے وہ تو ان سے انسپائر ہو کے ان کی رسپیکٹ اور کر رہی ہے، ان کے علماء کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ جانے ان کے دل میں کیا ہے. تو ایسا کچھ ہے نہیں ویسے، مطلب فرقوں کے حوالے سے نا، مطلب وہ فرقے والے یہ بولتے ہیں، یہ فرقے والے وہ بولتے ہیں. تو فرقے والے کیونکہ بیسکلی فرقے والے تنگ ان سے. بندے کا تعارف اس طرح ہوا تھا کہ جب میرے سامنے ان کا نام لیا جاتا تھا نا، میں اپنے بھائی کو کہتا تھا تو پاگل ہے، کدھر نام لینے؟ اچھا، یہ تو فتنہ ہے. ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار اس بابے سے مدد مانگو، یہ بابے نے کشتی نکال دی اور مردوں کو زندہ کر دیا، حالانکہ یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. اچھا، انجینئر صاحب کا جو تعارف تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ نیگیٹو یا پازیٹو؟ نیگیٹو نہیں، نیگیٹو سے بھی ایک درجہ اوپر. اچھا، نیگیٹو پلس. ہاں، نیگیٹو پرو میکس. انجینئر صاحب کا آپ کو تعارف کیسے ہوا؟ بس یہ سوشل میڈیا سے ویڈیو دیکھ کر، اس سے ذرا کی باتیں سن کر، کیونکہ پچھلے جو ہیں وہ تو سارے بابوں کی باتیں کرتے ہیں، ختم دلانا، یہ گنڈوں کا یہ وہ، تو جو حق کی بات ہے وہ ذرا دل میں ذرا جلدی سے اثر کر جاتی ہے. اور ان کا جو انداز ہے بتانے کا، وہ پھر حضرت علی کا قول ہے، جب دیکھو کہ آپ لوگ منافق ہیں، جس کے پیچھے رش ہوگا وہ منافق ہوں گے. اور سب جو ہے بڑے بڑے علماء ہیں جو ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، تو پھر یہ بات سننے کا مزہ آتا ہے نا. پھر ہم تو ہمارے جو ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی بتاتے ہیں کہ ان کو سنو. اگر ہمارے پاس ان کی وہ اتھینٹک بات نہیں ہوتی تو ہم مرزا صاحب کی کوئی نہ کوئی ویڈیو اللہ کی طرف سے چلاتے نا سوشل میڈیا، تو آگے آ جاتی ہے. تو پھر ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ سنو یار. جب ان کو سناتے ہیں تو پھر ان کے یہی ہوتا ہے یار ٹھیک ہے، باتیں تو ٹھیک آتا، لیکن تھوڑا جلالی ہے. ماشاء اللہ آج ہم نے زیارت کی ہے، ان کی محبت بھی بہت زیادہ ہے، اور ملنے کا طریقہ اور بات کرنے کا. کون سی ایسی باتیں جو انجینئر صاحب کی آپ نے سنی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنی بھی ہو، اور جس نے آپ کی لائف بدل دی؟ یہی چیزیں کہ جو بابوں کا ہے کہ خدا کوئی اور ہے، ہمارا کتاب، تو یہی چیزیں ہیں جو انہوں نے کہ عوام کو، جیسے عمران خان نے شعور دیا، انہوں نے بھی شعور دیا کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہے. یہ تو انہوں نے اپنے کاروبار بنایا ہوا ہے، تو ادروائز لیکن یہ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بہت دل خوش ہوا. آئندہ بھی کوشش کریں گے کسی کو لے کے آئے اگر کسی کی ضرورت ہو. بہت شکریہ بہت مہربانی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے؟ اختر علی جی. اختر صاحب کدھر سے آئے ہیں؟ میاں چنو سے آئے ہیں. میاں چنو. کیا کرنے آئے تھے؟ ادھر علی بھائی کا بیان سننے کے لیے آئے تھے. سن لیا بیان؟ سن لیا. بیان کیسا تھا؟ بہت زبردست تھا ماشاءاللہ، بہت مزہ آیا، اور بہت سے شکوک و شبہات تھے جو ہمیں ادھر آ کے اکیڈمی کے بارے میں تھے وہ کلیئر ہوئے کہ سارا عملہ بہت اخلاق سے ملتا ہے اور ہر طرح کا تعاون کیا جاتا ہے. اور یہ مجھے یہ ایک سرچ پیپر ملا ہے اور یہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ یہ جو فری ملا ہے ماشاءاللہ. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا پہلے کون سا فرقہ تھا؟ پہلے بریلوی تھے، بریلوی سے کنورٹ ہو کے دیوبند میں گئے، دیوبند سے سیدھا پھر مسلمان ہی ہوئے. انجینئر صاحب کا جو تعارف آپ کو پہلی دفعہ ہوا، نیگیٹو تھا یا پازیٹو تھا؟ نیگیٹو ہوا تھا. 2014 میں نے پہلی ویڈیو دیکھی تھی رفع ذہن کے متعلق. مجھے اتنا کوئی اس پہ کہہ لیں کہ ڈاؤٹ تھا اس پہ. اچھا. لیکن جب میں نے اس کے جو حوالہ جات دیے ہوئے تھے نا حدیثوں کے، ان کو میں نے جب کراس ویریفائی کیا، کتابوں میں چیک کیا، تو وہ مجھے بالکل کلیئر لگے، اور میں نے اس دن سے رفع ذہن سے پھر نماز باقاعدہ شروع کر دی. کیا ایسی باتیں تھیں انجینئر صاحب کی جو آپ اس سے پہلے بھی جتنے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کو تو سنتے ہی ہوں گے، جی ان کے اندر نہیں آپ نے پائی جو انجینئر صاحب کے اندر آپ نے دیکھی اور آپ نے ان سے سیکھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ پہلے فرقہ واریت کے ہم بہت زیادہ یعنی کہ اس پہ چلتے تھے، اپنے فرقے کی یعنی کہ اپنے مولوی کی بات جو ہے نا وہ ہم ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن جب انجینئر صاحب کو سنا کہ انہوں نے جب سب کوئی ان کی کتابوں سے ان کو فیل کیا،
तो फिर सोचने पे मजबूर हुए कि यार ये जो बंदा बात कर रहा है बात तो सही कर रहा है और हवालों के साथ कर रहा है, हदीस की पूरी और कुरान मजीद से सारे हवाले दे रहा है। तो फिर ये दिल ने तस्लीम किया, दिमाग ने तस्लीम किया, फिर उसको बाकायदा वेरीफाई करके पढ़ के फिर यानी कि इस बंदे की और आम मौलवियों के बंदे की बातों में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। अंदर गए थे पिक्चर बनवाए हैं? हाँ जी, पिक्चर बनवाए। क्या लगता है जिस तरह इंजीनियर साहब बैठ के अवाम उन्नास को मिल रहे हैं, दीन भी सिखा रहे हैं, और भी कोई कर रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मौलवियों के तो जो फेमस है ना, जो मौलवी, उनके तो मिलना ही बहुत मुश्किल है। मिलना ही बहुत मुश्किल। हाँ जी, इधर तो बड़े आराम से गए हैं, अंदर लेके गए हैं, उनके साथ मुसाफा किया है और हाथ मिलाया है और पिक्चर बनवाई है। और हाथ में लाया तो मुट्ठी छुट्टी गर्म की है? नहीं, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि सुबह नाश्ता भी करवाया। अच्छा, अभी समोसा भी खाएंगे और चाय भी पियेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मौसम। मौसम भाई किधर से? शिमाली मल्ला से, जेलम से। झेलम से ही हो? फर्स्ट टाइम आए हो? यस। प्रोग्राम देखा ही सारा? अच्छा, तारुफ कैसे हुआ था इंजीनियर साहब का आपको? मेरे दोस्त एक सुनते थे, उनसे सुना, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप सुनो इनको, फिर सुनना शुरू किया, फिर उनकी बात अच्छी। कितना अर्सा पहले सुना? साल हुआ है। साल हुआ? जी जी। तो कैसा पाया? जब लोग तो बड़े बड़े एलिगेशन लगाते हैं, आप क्या कहते हो? बिल्कुल ठीक है इंजीनियर साहब, बिल्कुल ठीक है। तो इतना अरसा हो गया यार जेल में रह के भी तो नहीं आ सका? नहीं, मैं आया था एक बार, रश बहुत था, इधर खड़ा होकर वापस चला गया। हाँ। तो कुछ काम के सिलसिले में नहीं आने हुआ। अच्छा, इंजीनियर साहब को सुन के लाइफ में क्या चेंज आया? काफ़ी चेंज आया है। बिल्कुल। ठीक, अंदर गए थे, पिक्चर बनवाए? जी बनवाए। क्या लगता है और जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं वो इस तरह बैठ के दीन की खिदमत कर रहे हैं, अवाम नास को मिल रहे हैं जिस तरह इंजीनियर साहब कर रहे हैं? फिर क्या दीन का काम कर रहे हैं ये लोग? कुछ भी नहीं समझ नहीं आ रही इनका। कोई समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या नाम कैसे है हैं? भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम अहमद है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद भाई किधर से आए हैं? मैं सरगोदा से आया हूँ। सरगोदा से? सरगोदा क्या स्पेशल। करने हैं? यहाँ की जो रूहानियत जो हाँ। फील था ना यहाँ पे, और जो काम कर रहे हैं अली भाई, उसकी जो बरकत, उनके चेहरे पे माशाल्लाह जो रौनक थी ना, वो देखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। माशाल्लाह। और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। जो उन्होंने कहा अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बड़ी ख्वाहिश थी इनसे मिलने की, आज वो ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम आए? मैं फर्स्ट टाइम आया। कितने दोस्त हैं? मेरे साथ 2 बंदे और हैं, वो तो चले गए। मैं ज़रा आपसे मिलके भी जाऊँगा स्पेशल। अच्छा ये बताएं, ये बताएं इंजीनियर साहब का आपको तारुफ कैसे हुआ था, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैं जो बात करूँगा वो अलग है। मुझे इनका तारुफ हमेशा पॉजिटिव ही रहा है, क्योंकि मैं एक अहले हदीस मकतब से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। 80% इनकी वो चीज़ें जो थी ना, रफ़ दैन पे जोर देना और तौहीद के मामले में, वो रफ़ दैन मकतब वाले भी यही इसकी ही सलाह करते थे, इसकी तौहीद देते थे। तो मुकम्मल तारुफ जो इनका मुझे अच्छा हुआ है वो ये है कि इनका जो स्पीकिंग पावर है, इनका कॉन्फिडेंस है, और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे इनकी बात करना, बाकी साइंस के ऊपर बात करना, और पैशन के साथ कॉन्फिडेंस दे के ये चीज़ें इंस्पायर करती हैं इंसान को। बंदा यूनिवर्सिटी में भी आगे जाके चीज़ों को इनको सीख कर बंदा आगे से वो डेवलप कर सकता है, और बड़ा फ़ायदा होता है इनको देख के, इनकी चीज़ें पढ़ के, देख के, सुन के। अरे 20 अवाम जो है वो तो इनसे इंस्पायर होके इनकी रिस्पेक्ट और कर रही है, उनके उलमा क्यों नहीं कर रहे? अल्लाह ताला जाने उनके दिल में क्या है। सीरियस है ना, एक सवाल है मेरा। ये सवाल है यार वो क्यों नहीं कह रहे? वो तो गालियां कज़ाब, कभी क्या कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। उनका जो रुतबा जिस टाइम इस रुतबे जो वो है ना, जिस उनकी सीट छीनी जा रही है कि वो उसकी तारीफ करके इनकी तो वो इज्जत कम ना हो जाए। सारी बात उनको पता है, ड्राइविंग सीट पे ये ना अड़े हुए हैं, मतलब एक जगह पे अड़े हुए हैं, ताकि हमें ना कुछ बाकियों की तरफ से हमें ऐसी बात ना सुनने को मिले किसी ने तारीफ कर दी वहाँ इंजीनियर साहब की। कुछ ये वजह हो सकती है, बाकी बेशुमार वजह हो सकती है, बाकी अल्लाह ताला जानता है बेहतर। लेकिन मैं बड़ा मुतासिर हूँ इनसे अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी पहले भी था। बाकी इन्होंने दीन को आसान करके दिखाया है। ईशा के 17 रखते जड़े कहते सी पढ़ो तो नमाज होती है, मतलब बड़ा आसान बता दिया। बंदा फर्ज के बाद सुनते ही बंदा पूरी कर इस तरह की मिसाल तो अहले हदीस उलमा बताते थे, बताते तो आसान करके बताते, लेकिन इन्होंने एक इजी और आसान करके बताया, और मतलब एक नॉर्मल एक बता दिया कि ये आप स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसमें आपने रह के सारा कुछ अमल करना है, और बड़ा इजी हो गया। मुंजी साहब यही कहते हैं ना कि अहले हदीस भी है ना, उन्होंने एक फिरका तो वो बन ही गया था, फिरका वो बन गया, इसलिए वो भी मतलब जो इनका था ना कि हदीस जब आई तो हम पीछे हो गए, लेकिन वो खत्म हो गया, वो एक फिरके के अंदर आ रहे थे।
अच्छा अंदर गए थे पिक्चर बनवाए मैं बनवा गया माशाल्लाह, बड़ा मजा आया। क्या लगता है? वीडियो में LEDs माशाल्लाह बड़ी हाइट है की, लेकिन मैंने देखा मेरे साथ की है थोड़े से है, अच्छा। नॉर्मल हाइट है माशाल्लाह। अच्छा कितने कितने बड़े आलम दीन हैं, हदीसों में भी हैं, वो भी इस तरह लोगों को मिल रहे हैं बैठ के वामुन्नास से? नहीं नहीं वो क्यों? नहीं वो तो ज़ाहिर है, वो जिन्हों की ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾਰ ਬੰਦੇ माशाल्लाह, इनकी नज़र आती रौनकें और शरीफ इंसान है, वो दिलेर आदमी है, ज़िंदगी में बड़े अच्छे इंसान है, मतलब कैजुअली बंदा मिले ना बड़ा मरने का इंसान है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सेहत दे के रखे इन्हें हमेशा इंशाल्लाह, और आपको भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कासिम हुसैन नाम है। कासिम भाई किधर से आए थे? चकसवारी। चकसवारी से क्या करने? जी सबसे मिलने आए थे। मुलाकात हो गई आज? अलहमदिल्ला मुलाकात हो इनका गई। तारुफ कैसे हुआ था आपको, नेगेटिव या पॉजिटिव? उस नेगेटिव के पास तारुफ हुआ था, तकरीबन सबको नेगेटिव तारुफ होता है इनका। हाँ, तो फिर जब बाद में आप उसको एक्सप्लोर करते हैं तब आपको पता चलता है मज़ीद। सुनना शुरू किया? जी जी। तो बेसिकली मैं भी स्टार्टिंग में नेगेटिव तारुफ होता है इनका, तो फिर आस्ता आस्ता फिर जैसे इनको सुनना शुरू किया, देखना शुरू किया कि देखे तो सही इसमें है क्या, बंदा क्या कह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है, चाहता क्या बंदा। तो जब उनको देखना शुरू किया, उनको जानना शुरू किया, तो पता चला कि बीच में कुछ और है, बात कुछ और है, गाल भी कुछ और है। हाँ, गाल कुछ और है। हाँ, तो गाल क्या थी? बस वो ये गुस्ताख था, वो ना, जिसके ना। इसके ऊपर जो ब्लेम लगते थे वो था ये बंदा? नहीं, ये तो बस ऐसे लोगों की बातें होती है ना कि ये जो यहूदी एजेंट है, उनका भेजा हुआ, उनका भेजा हुआ, बाहर के मुल्क से फंडिंग आती है, ये वो सब कुछ। तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे, मतलब फिरकों के हवाले से ना, मतलब वो फिरके वाले ये बोलते हैं, ये फिरके वाले वो बोलते हैं, तो फिरके वाले क्योंकि बेसिकली फिरके वाले तंग इनसे हैं, तो इसलिए वो फिर वो ऐसी बातें बनाएंगे उनके बारे में, ये ऐसे वैसे बोलेंगे, मतलब ऐसे एजेंट हैं, यहूदी एजेंट है, फिर वहाँ से फंडिंग आती है, ये होता है वो होता है, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं है असल में। अच्छा अंदर गया था पिक्चर बनवाया? हाँ, अंदर गया था मैं। क्या लगता है और भी पाकिस्तान में कोई बड़े नाम हैं इस तरह दीन का काम कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हो? नहीं अभी तक तो देखा नहीं मैंने सर, अभी तो सर किसी से मुलाकात नहीं हुई। चलो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? उमर। उमर भाई माशाल्लाह। उमर भाई किधर से आए? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद। क्या करने आए थे? ये इनका आज जो बयान है उसके लिए आए थे। सुन लिया? हाँ जी। पूरा देखा बयान आज? हाँ पूरे टाइम पे आ आए गए। फर्स्ट टाइम आज? फर्स्ट टाइम। कैसा आज का एक्सपीरियंस कैसा जो देखा आज? वो तो बयान करें, वो कैसा था? काफ़ी सिमिलर था क्योंकि YouTube के ऊपर मैं इनको बहुत रेगुलर फॉलो करता हूँ, और माशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि हम अक्सर करते हैं वर्जिश जिम में जाके, तो जो वर्कआउट है ना उसके साथ हम म्यूज़िक के बजाय इनके लेक्चर्स बिल्कुल सही लगाए, है। यानी YouTube पे इनके लेक्चर चल रहे होते हैं, तो उस वजह से वो बहुत रेगुलर फॉलो करते हैं इनको। यहाँ पे आके एक लाइव एक अपना ज़ाहिरी बात है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है जो भी यूट्यूब पे हमें देखते हैं। हाँ अलबत्ता ये था कि सोचा ये था कि शायद कोई थोड़ी गपशप लगेगी, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है बंदे इतने हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल। अच्छा इनको जो आपको तारुफ हुआ था वो कैसा रहा, नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नहीं पॉजिटिव था, बिकॉज मेरा एज सच कोई मस्जिदों में जाना बहुत ज़्यादा नहीं था, तो दोस्त यार जो इनकी यूट्यूब के ऊपर स्टेटसेस वगैरह व्हाट्सएप पे जो स्टेटसेस लगाते थे, वो छोटे छोटे क्लिप्स आते थे 20 सेकंड के 10 सेकंड के, वो शुरू में देखा करते थे। वो जारी बात है उनमें इनकी पंच लाइन्स होती थी, तो थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता था, तो फिर इनको ज़रा यूट्यूब पे सर्च किया, थोड़ा सा इनके बारे में शॉर्ट क्लिप्स से आगाज़ किया था, 3 मिनट 4 मिनट। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब इंटरेस्ट बना तो फिर इनके फिर बाकायदा जो फुल लेंथ लेक्चर्स हैं, फिर पॉडकास्ट हैं, वो रिसेंट जितने भी कर रहे हैं सब देख रहे हैं वो। कल रात ही अभी मेरे एक और दोस्त हैं, उनके साथ बात हो रही थी, वो भी इनको फॉलो करते हैं, लेकिन कहते हैं यार इनका लहजा बहुत तल्ख है, तो फिर वो जो भी हनीफ कुरैशी वाला सारा हुआ था मामला, उस पर फिर उनका मानना था, कहते हैं यार मैं फॉलोअर तो हूँ इंजीनियर साहब का, बट मुझे लगता है कि यार इनको बाहर निकल के रिसीव करना चाहिए था। मैंने कहा यार देखो वो तब रिसीव करना बनता है जब इन्होंने उनकी वो टर्म्स एंड नहीं किया था, लड़का गया था हमारा नीचे। हाँ, इधर तो प्रोग्राम चल रहा है ना, हाँ जी, प्रोग्राम हाँ जी। छोड़ के तो कोई नीचे नहीं हाँ, जाता ना यार, एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी होता है। हाँ। प्रोग्राम चल रहा है, जो
200-250 लोग बैठे हुए हैं, ये भी तो मेहमान है ना। ये भी बात सही है। हाँ, या तो लड़का खुद नहीं आए। चले ये बताएं, आपकी लाइफ में इंजीनियर साहब को सुनने के बाद क्या चेंज आया, क्या फ़र्क आया, और कौन सी ऐसी बातें थी जिसको आपको लगा यार ये बंदा वाकई दीन का जो नबील रास्ता दिखा रहा है? मैं एक बात मुझे अब श्योर नहीं है आप इस चीज़ को अपने चैनल पे चलाएंगे या चला सकते हैं? चलाएंगे। देखें, हम या मेरे जैसे जो लोग हैं और मेरे इवन जो सर्कल में जो लोग हैं, हम सबको सुनते हैं। हम यूथ क्लब को भी फॉलो करते हैं, हम इंजीनियर साहब को भी फॉलो करते हैं, हम तारिक मसूद की भी वीडियोस देखते हैं। होना भी यही चाहिए ना, फर्क फिर नजर आता है आपको। हाँ, और अच्छा, पसंद किसको करते हैं? उनमें एक इंजीनियर साहब हैं और एक यूथ क्लब वाले हैं। यूथ क्लब वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन जी माशाल्लाह। और अभी लेकिन ये है कि कुछ तल्ख चीज़ें, हकीकतें जिनके ऊपर से पर्दा उठना चाहिए, वो बाकी लोग पर्दा डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से मैं इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। मिसाल के तौर पे अब मेरे अपने घर के अंदर जो हमारी बचपना जो परवरिश हुई है, तो उसमें यही बताया गया जी कि ऐसी मस्जिद में जाओ जहाँ पे नमाज के बाद दुरूद पढ़ा जाए, और दूसरी मस्जिदों में ना जाओ। तो वो शुरू से ही बात खटकती थी कि यार ऐसा क्यों? जाना तो हर मस्जिद में चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो वो बचपने से ही एक चीज़ थी अंदर के नहीं यार कुछ ना कुछ गलत है। इनकी बातें जब सुनी उसके बाद शुरू से ही मैं अपने आप को अपने वालिद साहब से कहता था कि जी मेरा किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं है, बस अल्लाह ताला ने कुरान में जो नाम दे दिए मुसलमान का वही नाम है, उसके अलावा कोई नहीं है। हम कोई नहीं होते कि अल्लाह का दिया हुआ नाम बदल दें, बेशक कि हम अपने आप को जो है ना वाबी कहें, देवबंदी कहें। तो मुझे अपना नहीं पता कि मेरे फ़िरका जो मेरे वालिद साहब फॉलो करते हैं उसकी डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि कभी उसमें हम पढ़े नहीं। इन्होंने जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो कह लें कि पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया कि बेसिक्स क्या हैं। और मैं नहीं कहता कि मैं कोई मौलवी हूँ। हाँ सही है, लेकिन बेसिक दीन सीखना तो हमारा काम है ना यार। बेसिक के ऊपर जो है ना। अब क्या स्टेटस है वालिद साहब का, फैमिली का? उनको भी दावत रखी उनके आगे? नहीं, उसकी वजह ये कि वो लाहौर में होते हैं, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। तो क्योंकि मेरी जॉब इस्लामाबाद में है, तो मिलना जुलना है, लेकिन जाहिर बात है वो उस तरह से फिर इतना रेगुलर जो है ना वो बात नहीं होती। आपका फ़र्ज़ है, आप दावत ज़रूर रखें। मैं वाइफ को ज़रूर दावत की तरफ करता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी है 6 साल की। तो लेकिन ज़रा औरतों के लिए जो है ना वो ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, क्योंकि इनका जो स्टाइल है ना वो ज़रा थोड़ा एग्रेसिव है। हाँ सर, थोड़ा एग्रेसिव है। तो चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई किधर से आए हैं? हम सियालकोट से। सियालकोट से हैं। क्या करने आए थे पहले तो ये बताएं। बस ऐसे ही घूमते घूमते हम इधर को आ गए। ऐसे ही बैठे हुए थे मस्जिद में, बस दोस्त कहता चलें किस दिन उठ जाएं, कोई गल। अच्छा, बस इधर आए। असल में देखना तो उस बंदे को, फिर इस बंदे को देखने की वजह से हमें असल दीन का जो है ना पता चला। अच्छा। दीन क्या है और दीन क्या इस है। बंदे का तारुफ कैसे हुआ था, नेगेटिव पॉजिटिव? इस बंदे का तारुफ इस तरह हुआ था कि जब मेरे सामने इनका नाम लिया जाता था ना, हाँ। मैं अपने भाई को कहता था तू पागल है, हाँ। किधर नाम लेने? अच्छा। ये तो फितना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब मैंने इनकी वीडियो देखना शुरू की ना, तो वो एक बंदे को चस्के के लिए नहीं देखता, बस कोई इंटरेस्ट नहीं था दीन में, पता है चस्का लेने के लिए मजा आता था। चस्का लेते लेते पता ही नहीं चला अब इनकी वीडियो का शौक बढ़ गया। बस शुक्र है अल्लाह का, हिदायत देने वाली दात अल्लाह की है, लेकिन जरिया अल्लाह कोई ना कोई बना देता है ना। अच्छा, इनको सुनने के बाद क्या चेंज आया लाइफ में? क्या सीखा दीन का इनसे जो इससे पहले किसी से सीख नहीं पाए, और ये इससे पहले किसी की बातें उस लेवल पे नहीं समझ आए? मैं आपसे पूछता हूँ एक बात कि आज जो उलमा कहते हैं कि हमें 10-10 साल हो गए हैं स्टडी करते हुए, मैं उनसे कहता हूँ कि डॉक्टर इसरार की तरफ नौजवान क्यों अट्रैक्ट होते हैं? 10 साल तो आपने लगाए हैं दीन पर, 10 साल आपने लगाए हैं, तो इस बंदे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है वहाँ? सही बात है ना, क्यों होती है? क्योंकि मेरे मुताबिक दीन को असल बंदा वही समझ सकता है जिसको दुनिया की स्टडी है, उसको दुनिया का पता है। ठीक है, इन लोगों को दीन का भी पता, दुनिया का भी पता है। जो नौजवान नस्ल है ना, जो यूनिवर्सिटी से निकल दिया, उसको जब आप सीधा सीधा दीन की बात बताएंगे ना, उसको समझ नहीं आएगी। जब आप उसको दुनिया की मसाले देंगे ना साथ, तब यही बात है, समझ आएगी। और यही चीज़ें हैं इनके अंदर, डॉक्टर इसरार के, मौला साहब साहब के। जब इनकी वीडियो बंदा देखता है ना, तो बंदे को मज़ा आता है, एक इंटरेस्ट अंदर पैदा होता है। जब इंटरेस्ट पैदा हो जाता है तो बस यही बात है। अच्छा, सियालकोट में और भी तो बड़े बड़े नाम हैं, मिस भाई साहब इतने प्यारे वहाँ पे हमारे मुर्शद हैं,
آپ نے ان کو نہیں کبھی سنا؟ مصباحی صاحب کو ہم بڑا سنا کرتے تھے. مصباحی صاحب کا جو لہجہ ہے نا وہ بڑا پسند ہے, اچھا. ابھی بھی پسند ہے. میں نہیں کہوں گا کہ مصباحی صاحب کا لہجہ جو ہے نا میں نہیں پسند, بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب پھر ان کو ساتھ میں سنے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے نا کہ دو کشتیوں پہ سوار نہیں ہو جاتا, بندے کو یہیں ادھر ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں, جس طرح انجینئر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کی صحیح معنوں میں خدمت کر رہے ہیں, بیٹھ کے لوگوں سے عوام الناس کو مل رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں, اور بھی بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں جس طرح کا کام کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اب میں اگر جاؤں مولانا طارق جمیل کے گھر تو کیا وہ اس طرح میرے ساتھ بیٹھیں گے؟ اگر وہ بیٹھیں گے تو ہم لوگوں کو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ بیٹھتے ہیں یہ لوگ؟ لیکن آج تک میں نے جہاں تک دیکھا ہے نا کہ جدھر بھی کوئی مولوی آتا ہے نا تو مثلاً اگر محفل ہو رہی ہے تو کوئی بھی اپنی جیب سے نہیں کھلاتا. اب ہم ادھر آئے, ہمیں نہیں تھا پتا کیا سین ہے. اب ایک بندہ ہے, ہم یہاں پر بٹھا کے ناشتہ کروائے, اس کے باہر چائے سموسا دے, تو پھر بندے کو آٹومیٹک ہی بندہ اس کی طرف مائل ہوتا. فار ایگزامپل میں ایک دفعہ چلا گیا تبلیغی جماعت والوں کے پاس, ٹھیک ہے, اب اختلاف اپنی جگہ جو بھی ہے ان کا یا ان کا, لیکن ان کے ہلاک ہمیں بڑے پسند ہیں. جی جی صحیح ہے یار. انہوں نے ادھر بٹھا کے ہمیں اٹھنے نہیں دیا جب تک انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اچھے طریقے سے. چاہے جو بھی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں یہ تبلیغ میں اچھے کام کے لیے نا, تو میں کہتا ہوں اخلاق جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. انجینئر صاحب کے پاس ہم ادھر آئے ہیں, جس طرح کا انہوں نے ماحول دیا ہے, انجینئر صاحب کا اخلاق کیسا نظر آیا؟ انجینئر صاحب کا اخلاق جو ہے یہ تو لوگ تو ان کے بڑے الیگیشن ہوتے ہیں, بدتمیز ہے, اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, علماء کی عزت نہیں کرتا. آپ نے کیا دیکھا یار, یہ بتا دو. ہر بندے کا اپنا اپنا لہجہ ہوتا ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے ان میں یہی دیکھا ہے کہ جو بندہ ہمیں قرآن و حدیث کے حوالے دیتا ہے نا, چاہے اس کا لہجہ جیسا بھی ہے, اگر آپ میرے سامنے کوئی بندہ آ کے مجھے کہے کہ پڑھو, نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے جو آج پورا پروگرام اٹینڈ کیا ان کا لہجہ دیکھا, عوام الناس سے بات کرنے کا طریقہ, سارا کچھ, آپ نے کیا پایا؟ میں نے تو یہی پایا کہ ہلاک ان میں ہے, یہ بس بالکل ویسے ہی بنا ہوا ہے کہ لوگ الزام بدتمیز ہیں. لوگ الزام ویڈیو کاٹ لیتا ہے نا بندہ, جیسے جی بیچ میں ویڈیو وغیرہ کاٹ لی, کٹنگ کر کے جو سامنے پیش کی جانی ہے, وہ تو قرآن پاک کی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ آیت بھی پیش کرو گے تو بندہ گمراہ ہی ہوگا. کہ قرآن پاک کی اگر ایک آیت آپ کاٹو گے تو اس کو دو گے, آگے کسی کے سامنے پیش کرو گے, وہ تو حیران ہو جائے گا. قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں جی, وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھیا؟ فیصل علی. فیصل بھائی کدھر سے؟ میں فیصل آباد سے ہوں. فیصل آباد سے ہیں جی. کیا کرنے آئے تھے؟ میں انجینئر صاحب سے ملنے آیا تھا. کچھ میں نے کہا کچھ ملوں ان سے, کچھ ایمان تازہ ہو میرا, کیونکہ میں ان کو پسند کرتا ہوں. اچھا. جتنی ان کی بات مجھے اپیل کرتی ہے, جس طرح لاجک سے یہ بیان کرتے ہیں اور بالکل اوتھینٹک ایک چیز بتاتے ہیں, تو اس لیے میں اپنے ایک تجدید کرنے آیا تھا کہ میں اپنی شخصیت کے اندر کچھ ایمان تازہ کروں اور اصلاح کے لیے اپنے کہہ لیں آپ. اچھا, ان کا تعارف کیسے ہوا تھا آپ کو, نیگیٹو یا پازیٹیو؟ ان کا تعارف میں 2018 سے سن رہا تھا. میں نے واقعہ کربلا کا نا میرے ذہن میں آتا رہتا تھا نیچرلی کہ یار یہ آل رسول شہید ہوئے, کوئی عالم ہمیں پوری بات نہیں بتاتا. میں کچھ شیعوں کو سنتا رہا, تو جب میں نے یہ اپنا انہیں انجینئر صاحب کو سنا تو انہوں نے تو اتنا اوتھینٹک اور ڈیٹیل سے بتایا. میرے دل میں ایک اہل بیت کے لیے ویسی ایک محبت تھی. جی صحیح ہے. تو وہاں سے پھر میں نے آغاز کیا, اور پھر میں نے رفع یدین سے متعلق اپنی نماز کی اصلاح کی, اور 2018 سے پھر میں ان کو سن رہا ہوں. اور اب دوست وغیرہ ان کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا, میں ان کو چیزیں بتاتا تھا کہ یار دیکھیں یہ توحید پہ کس طرح بات کر رہے ہیں. ہمارے عام علماء ممبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یار اس بابے سے مدد مانگو, یہ بابے نے کشتی نکال دی اور مردوں کو زندہ کر دیا, حالانکہ یہ تو اسلام ہے ہی نہیں. اسلام ہے ہی نہیں, بالکل صحیح ہے. تو وہ میں اس چیز سے اپیل مجھے کیا, اور میں ان کے لیے بہت عقیدت رکھتا ہوں, اس لیے اتنا وہ. آج فرسٹ ٹائم آئے؟ جی فرسٹ ٹائم. آج پورا پروگرام دیکھا؟ جی. آج کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آج ایک گفتگو کے حوالے سے کیسی گفتگو تھی, ٹھیک تھی؟ جی بڑا اچھا لگا مجھے, اور ایک ان کے ساتھ روحانی ایک انٹریکشن بھی مجھے فیل ہوا, اور استاد ہیں, قابل احترام ہیں, تو بہت اچھا لگا. الفاظ میں شاید بیان نہ کر سکوں. انجینئر صاحب کو جب سے آپ نے سننا شروع کیا, لائف پہ کیا اثر آیا, آپ نے ان سے کیا سیکھا دین کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی میں نے ایک تو ذہن میں بہت کلیئرٹی آ چکی ہوئی تھی کہ یہ جو ادھر ادھر کی خرافات چیزیں اور دین کے کوئی بھی چیز دین کے نام پہ جو چل رہی تھی, جی اور دین پہ کوئی بھی چیز لینے سے پہلے اس کو پرکھنا ہے, کیونکہ ہم اپنے کسی رشتہ دار کی بھی بات
अगर सुनते हैं या कोई सौदा सलफ़ी लेने जाते हैं, कोई थोड़ी सी तहकीक तो तहकीक करते कर, हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। दीन की बात में हम क्यों तहकीक ना करें? तो इसलिए मुझे ये चीज़ें मुझे यहाँ से मिली हैं और मुझे पता चला है कि अल्लाह ताला ने लॉजिकल दुनिया को बनाया हुआ है, मौजज़ात पे नहीं चल रहा सारा कुछ। आपको उस लॉजिकल तरीके में अपने आप को ढालना है। बेशक बेशक। अंदर गए थे, पिक्चर बनवा के आए? जी जी, मैं 2 दफ़ा। क्या लगता है पाकिस्तान में इतने इतने बड़े नाम हैं, उलमाए दीन हैं, लोगों की बैठ के अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं इस तरह बैठ के जिस तरह सब कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे जी हो, और भी कर रहा है कोई? नहीं, इस तरह कोई नहीं कर रहा। वो ज़्यादातर तो हमारे माशरे में सबके सामने ही है, अपने लिए आसाइशें उन्होंने बना ली हुई हैं ज़्यादा अवाम की खिदमत के नाम पर, और चंदा ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, आसाइशें अपने लिए पैदा और लोगों कर को ली मिलना हैं। फिर भी नहीं है। नहीं, सादा लोग अवाम को कह लें कि अपनी आहवा के लिए, शोहरत के लिए, दौलत के लिए लगे हुए, जो उनके लाइफस्टाइल से नज़र आता है। ऐसे ही ऐसे जी बिल्कुल। चले जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया? अब्दुल वहाब नाम है। माशाल्लाह, अब्दुल वहाब भाई किधर से आए? लाहौर से। लाहौर से जी। क्या करते हो? मैं इंटरमीडिएट अभी फिनिश हुई है मेरी, और मैं अमेज़ॉन का कोर्स कर रहा हूँ अभी। गुड। जेल में क्या करने आए हो? ले जी, कोई सवाल पूछने वाला जी ना? पूछना है। मैं जी इंजीनियर साहब से मुलाकात करने आया था। गुड हो गया। हाँ जी। अच्छा, इंजीनियर साहब का जो तारुफ था वो कैसे हुआ था, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नहीं, नेगेटिव से भी एक दर्जा ऊपर। अच्छा, नेगेटिव प्लस। नेगेटिव प्लस, हाँ, नेगेटिव प्रो मैक्स। प्रो मैक्स। हाँ जी, इनके ऊपर जब मर्डर अटेम्प्ट हुई थी ना, उस ज़माने में इनका पता चला था। बस फिर एक वीडियो सुनी, 2 सुनी, 3 सुनी, 4 सुनी, फिर सुनती ही गई, फिर रुकी ही नहीं उसके बाद। क्या इंजीनियर साहब की वीडियो सुनने के बाद क्या फ़र्क आया लाइफ में? एक सवाल, और दूसरा ये है कि इससे पहले जो उलमाए कराम थे उनको भी तो सुनते थे ना? जी जी बिल्कुल। वो क्या बयान ऐसा नहीं करते थे जो इंजीनियर साहब ने बयान कर दिया? जी, इनसे पहले तो मैंने जो है ना फेमस 7-8 मौलवी रखे होते थे यूट्यूब पे कि इनसे मसला पूछना है, मगर यानी दिल को तसल्ली नहीं पहुंची थी, क्योंकि कोई बंदा किताब की बात नहीं बताता था। तो 1.5 साल इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने आप को फ़िरका वारी से फ्री रखा हुआ था इससे पहले भी, मगर फिर बात वही आ जाती है कि जिस मौलवी की बात ऊपर रखूँ मैं उसी फ़िक्र को फॉलो कर रहा हूँ। तो 1.5 साल सिलसिला चलता रहा। फिर इनसे मेरी जो है तारुफ हुआ मेरा। मैंने रेफरेंसेस देखी ना जब साइडों पे, उस दिन के बाद से इश्क हो गया बस। इश्क हो गया। हाँ बस। अच्छा, इश्क से मिला है अंदर जाके, हाँ पिक्चर जी, बनवाया? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या लगता है और भी कोई पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम हैं जो इस तरह लोगों से मिल रहे हैं, नहीं, दीन, बिल्कुल दीन नहीं। सिखा रहे हैं? इन्होंने जो दीन फैलाने का जो बनाया ना मॉडर्न तरीका, ये बहुत यानी आला तरीका है, बहुत आला तरीका है। आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देख लें, लोग उनसे आगे बाहर मिला करते थे, हाथ वगैरह मिलाते थे, दूर की बात वो बात किया करते थे बैठ के। जी। हमारे भी इंजीनियर साहब के साथ इसी तरह मुलाकात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, हमने पिक्चर बनवाई है। माशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया भैया, जी, आपका। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।